matters, let it be heard. Today, I, Tarun Verma, your host for the month, welcomes you all to this podcast series. Today, we have Mr. Sasank Singh sir. He is co-secretary of Agro Marketing Club as a guest on our show. First of all, a very congratulations sir for your placement and welcome to our show. Thank you, Tarun. Thank you me, to giving me this opportunity. Welcoming in your podcast. All the music club members are. I'm very thankful to them. If you have any question, you can ask me. Yeah, for sure, sir. So, starting our podcast, sir, the first question will be, sir, as you did your graduation from BTech Agriculture Science, then what make you choose like MBA, FABM, and that ISAB? In my BTech Agriculture, I get the technical knowledge of agriculture industry, in which I have covered so many machinery which are used in agriculture right now. But I want to broaden my envision. I want to check what is there for me, what is more there for me. So I believe that I should go for a business school to learn more about the agriculture sector and their working. That's why I've chosen MBA after my BTech Agriculture. Okay, nice to hear that, sir. So the other question that comes in all juniors' mind that as you are part of agro marketing, so you have been to so many expos and seminars. So sir, please tell everyone that what is the major advantage of visiting expos and attending seminars? If I have to talk about major advantage of going to these exhibitions, shows and seminar, is this we can see what is the how much huge is the world is. We can check, we can go how many more company are coming in, how business working in, and what is the real business in agriculture sector. If you study in books, you just get an aspect of what a business is and in a terms of definitions only. But you have to check whether it is working on field or not. By going to these expos and seminars, you will come across all the knowledge and experienceful persons to meet to broaden your vision in this area. I think it's helped a lot for a long term. Right now, if I talk about myself, I don't have any knowledge on the field. I have studied a lot in my agriculture, but I have only bookish knowledge. But after coming here, when I have meted all those professionals, experienced person in the industry, I get to realize that yeah, there are so many things in this market. And talking broadly about it, it really helps you in many ways. It will help you to grow your own business in future also. You can see all aspects of agriculture. That's all I think. ओके सर फॉर श्योर सर जितने भी एक्सपोज या सेमिनार्स अटेंड करते हैं सर बीइंग अ एमबीए स्टूडेंट सर बहुत अच्छा एक्सपोजर देते हैं हमको सर देयर इज नो डाउट अबाउट दैट या फॉर श्योर सर ओके सर समटाइम्स स्टूडेंट आल्सो फील लाइक कि अटेंडिंग एनी सेमिनार और एक्सपो लाइक फ्रॉम 9 बजे से 5 बजे तक बैठना है फिर हमें भारत मंडपम जाना है ट्रैवल करके सो सर इट इज काइंड ऑफ हैक्टिक और फन टू विजिट एक्सपोज हमको ना सबसे पहली चीज जो सीखनी चाहिए ना वो ऐसा नहीं चाहिए कि वर्क और लाइफ देयर इज टू डिफरेंट अपार्ट थिंग्स दे आर एक्सपेक्ट ऑफ सेम थिंग इफ यू ब्लेंड वर्क विद योर पर्सनल लाइफ ना दैट इट बिकम फन if you don't mix them ना it will really become hectic for you now I have to do this I have to do that then I will get my personal time then I have to sleep then wake up and do all the things on repeat mode ऐसा नहीं सोचना चाहिए स्टूडेंट्स को I think in MBA ना student come for experience only. Yeah. अगर उनको वो experience नहीं मिलता है, तो there is no point in MBA ना. Tell me if there is any point if you don't get any experience. If you want to read books and just be in a class, what is the point? Yes. You can read it in your home, in your room only. That's why it's important for all the MBA student to get involved all these activities. It will really grow you personally and I think in professional also. Yes, sir. MBA is all about getting exposure and making connections, sir. Sir, moving towards our next question is that, sir, is there any particular faculty whom you like the most in ISAB, like who influenced you the most over here? It's a difficult apple to pick.
Yeah, so you have to. But if I have to choose a faculty which really helped me, guided me in my MBA journey, I will definitely say it's Neha Saini ma'am. Professor Neha Saini ma'am guided me from day one. I have so many questions, I have so many things to ask, and I don't know whom to ask with. जब मैं उनसे मिला उसके बाद जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा उन्होंने बोला कि शशांक जितने भी सवाल है सब फेंक दो। तो कुछ सवाल के जवाब उन्होंने तब दिए, कुछ सवालों के जवाब उन्होंने कहा जब वक्त आएगा तभी दूंगी मैं। और उनका डांटना भी मतलब काइंड ऑफ स्कोल्डिंग ना, ये हेल्प करता है। कभी कभी आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ रुकना है। समटाइम्स यू डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। आप पूछना चाहो तो आप कुछ भी पूछ लो, नॉलेज आप पूछ लिए, आपने सुना एंड यू फॉरगेट। पहले आप उस चीज को एक्सपीरियंस करो, उस चीज को वहां तक पहुंचाओ कि हाँ दिस रियली मैटर्स टू मी एंड आई हैव टू नो दैट, देन गेटिंग द आंसर विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर मी। और यहाँ पे नेहा सैनी मैम का कोई जवाब नहीं। उनको दिखता है कि दिस क्वेश्चन डज नॉट बिलोंग राइट नाउ इन हिज लाइफ, वो आंसर नहीं देंगे। Yes, sir. She is definitely one of the best faculty at the IACB. Yes, sir. So, would you like to share us your journey? Like now you have been placed. So, like any piece of advice for your juniors? It was a complete roller coaster ride, यार, ups and down, left and right, gravitational pull, non-gravitational pull, everything was there in my life. जब मैंने MBA स्टार्ट किया ICB में, तो मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर तो मैं किताबें पढ़ने में इंटरेस्टेड था और मेरे को पढ़ना अच्छा लगता था, तो मैं किताबें पढ़ता रहता था और मैं सोचा था दैट्स इट फॉर मी। फिर जब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि नहीं भाई आपको मंडी भी जाना होगा, आपको विजिट्स भी करने होंगे, आपको फार्म्स भी जाने होंगे, आपको डिफरेंट प्रकार के बिजनेस सामने से देखने पड़ेंगे, उसके बाद उन पे प्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो फिर मुझको लगा यार दिस इज अ न्यू थिंग फॉर मी और आई एम रियली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। देन आई थिंक कि यार ये सब तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है मेरे लिए। फिर जब करने लगा फिर रियलाइज हुआ यार कि जो बुक में पढ़ा रहे हैं और जो रियलिटी में है वो कहीं ब्लेंड करता है और कहीं नहीं भी करता है, क्योंकि डिफरेंसेस होते हैं। आप बुक में कभी भी आप कितने केस स्टडी पढ़ लोगे, उसके बाद एक नया केस आपके सामने आ जाएगा, हर बार एक नया प्रॉब्लम आएगा और आपको फिर उसका नया सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो जब फर्स्ट सेमेस्टर में इन सबसे इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर यार हेक्टिक लगा, फिर आदत पड़ने लगी और फिर मजा आने लगा। और एज एन एग्रो मार्केटिंग मेंबर मेरे को ही सारे विजिट्स प्लान करने पड़ते थे, तो हाफ हार्टेडली बीइंग ऑनेस्ट हाफ हार्टेडली मैं प्लान सब कुछ करता था, सब कुछ मैनेज करता था, लेकिन मजा मुझे तब स्टार्ट आने लगा जब 2-3 बार लगातार जब मैं घुला मिला लोगों से, नए लोगों से मिलने को मिला, सीनियर पर्सन से मिलने को मिला जो इंडस्ट्री में है, तब मेरे को लगा कि नहीं माय फर्स्ट सेमेस्टर इज रियली सक्सेसफुल। सेकंड सेमेस्टर में आते ही सबके दिमाग में सेम क्वेश्चन, सेम डाउट की अब इंटर्नशिप कहाँ जाना है मेरे को, इंटर्नशिप के लिए कैसे इंडस्ट्री चूज करें। और मैं इंजीनियर ठहरा आदमी, ज्यादा दिमाग मेरे पास है नहीं सोचने का, मेरे को सिर्फ मशीनें दे दो मैं खोल के बंद कर दूंगा, ज्यादा दिमाग में आता नहीं। तो मैं फिर वही अपना स्टार्टिंग में अपनी किताबों पे ध्यान देने लगा, जब आएगी कंपनी तब किताब देखूंगा मैं, अभी से क्यों परेशान होना। जब लेकिन धीरे धीरे प्लेसमेंट से पुश करना शुरू किया मुझको कि यार अरे यार शशांक इस पे मेहनत करो, सीवी बनाओ, पर्सनालिटी सुधारो, ये चीज देखो, अपना इंट्रोडक्शन देना सीखो, क्वेश्चंस के आंसर कैसे हो सकते हैं इस पे थोड़ा थॉट दो कि एचआर क्वेश्चंस पे कैसे आंसर्स करना है। फिर मैंने धीरे धीरे उन पे भी पिकअप किया और फिर इंटरव्यू डे जब आया मेरा इंटरव्यू का, तब सीधा वही चीजें मुझको हेल्प करी। फर्स्ट सेमेस्टर में तो बुकिश हो गया था, सेकंड में प्रैक्टिकलिटी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगी थी। फिर इंटर्नशिप के टाइम पे जब मैंने उसको रियल ग्राउंड पे देखा तो आई वाज रियली स्टन्ड कि यार मैं जो बुक में पढ़ रहा था और ये कितना सिमिलर है और कितना डिफरेंट है दोनों एस्पेक्ट्स में। थर्ड सेमेस्टर आते ही फिर प्लेसमेंट्स की प्लेसमेंट कहाँ लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें फैकल्टी मेंबर्स का सपोर्ट, हमारे सौरभ सर का सपोर्ट स्टार्टिंग से ही डे 1 से उनका था कि यू हैव टू बी हार्ड ऑन योरसेल्फ so that soft things comes to you. Yes sir, मतलब roughly MBA is about only 1 year only. Like after coming back from your summer internship you have to start preparing for your placement. आप suntan हो चुके होते हो पूरी तरीके से। हाँ मुझे अभी भी याद है कि इंटर्नशिप के टाइम पे आई हैव टू मूव अ लॉट, और मैंने कभी लाइफ में ज़्यादा ट्रैवल किया नहीं था, तो इंटर्नशिप के टाइम पे आई हैव टू मूव अ लॉट, तो वो रियली मेरे नया एक्सपीरियंस था। और फोर्थ सेमेस्टर तो स्टार्टिंग में ही मैंने अपना कंपनी आई और मैं प्लेसमेंट सेल और माय होल एकेडमिक टीम्स हैज सपोर्टेड मी और the rest is history. Very congratulations for you for that.
सर बस अभी फिर एंड करेंगे, ज़्यादा इसको एक्सीड नहीं करेंगे। बस एक लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे आपने बताया आपको पढ़ना पसंद है, बट मुझे तो पढ़ाई से सर इतना कुछ है नहीं, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ना नहीं पसंद है और आईसेट का काफ़ी हेक्टिक सा शेड्यूल है, लाइक फ्रॉम 8:45 to 5। तो आपकी और क्या हॉबीज हैं, आप क्या करते हैं पढ़ने के अलावा सर? पढ़ते तो सर हम कॉलेज में भी बहुत हैं। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना कि हाँ किताबें पढ़ रहे हैं। पढ़ना आई गेस कि डॉक्यूमेंट्री भी काइंड ऑफ स्टडी है। प्लेइंग सम स्पोर्ट्स इज काइंड ऑफ स्टडी। यूजिंग योर ब्रेन एंड पार्टिसिपेटिंग सम ऑफ इवेंट इज काइंड ऑफ स्टडी। सर कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स? मैं चेस मैं बहुत खेलता हूँ, मतलब ठीक ठाक खेलता हूँ, जहाँ तक मुझको लगता है कि चेस में ठीक ठाक खेलता हूँ। तो उसमें मैंने अभी अपने कॉलेज में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें फर्स्ट पोजीशन आई थी मेरी चेस में। हाँ हाँ, हम लोग सबको पता लगा उसके बारे में सर। उसके बाद मुझे ऐसे भी ने फिर से मौका दिया जाकर के आया इंदौर खेलने का, और फिर मैं वहाँ जाके भी पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। चेस तो फ्यूचर में कैसे कंटिन्यू करना चाहेंगे चेस को आपकी जॉब के साथ साथ? मैंने बताया ना, वर्क लाइफ ऐसा कोई बैलेंस नहीं है, सब मिक्स है मेरे लिए। अगर टाइम मिल रहा है ऑफिस आवर्स में, अगर मैं बैठा हूँ 10 मिनट, तो व्हाई नॉट अ चेस मैच? It's like that only really. Oh, that's great, sir. So this was Mr. Shashank Singh sir with us as a guest. It was amazing talking to you, sir. And all the best. All the best for your future, sir. And we hope that we will meet soon here. Okay, so धन्यवाद. Thank you, Tarun, and thank you, Music Club, to arranging all this lightning and mic and all this setup. And this is a really nice experience for me. Thank you. So the total credit goes to some music club admin and to our members also, like technical team and all.